Hi, good evening, Aries. This is Guinea Aneja Mesh Rashi, and this is your sun sign, moon sign, and um, ascendant of uh, Aries. Um, so I'm going to be taking out. I've taken cards out beforehand for all the signs, and only I didn't want to waste time because three cards for mm, so finance, relationships, and health. As far as finance is concerned, seems like uh, seems like you're feeling a constraint. You're feeling that there is not enough. You're feeling uh, that work is not going the way it should, and you're not earning enough. Feeling stressed out about it. But the angel cards say that abundance is on your way. Just look at that and feel the energy. So maybe you can't see it because of the light, but there is a pigeon and there are angels showering stars and rainbows, and abundance is definitely on its way. And as far as relationships are concerned, um, you have taken up probably a back seat, and you've kept yourself away from people. You have been lonely or in solitude, but now uh, phew, that is about to change. And you've been single for a long time, and you've been in your own self, but uh, you're about to meet your twin flame. Your passion ignites. So, good luck. Uh, you need to come out of your shell, and you need to start flying, is what this says. For health, it says that you may have nostalgic moments which may kind of make you emotional. Now, when that happens, sometimes there are certain imbalance of hormones in our body, which can cause that. So make sure that you get some tests done and get your hormones tested and your vitamins tested, and make sure everything is in order. And you're going to just basically feel a lot of love for everyone, and that could kind of ignite your sexual energy and romantic, the make love energy, not the rape sex energy. uh, Magician in the mirror, fantastic. So it feels more like the hermit who is trying to balance the fire energy and the water energy. There you go, water energy again. And a balance is needed. That's what I just said, that the water energy is very high. And this already speaks about passion. So we're all a reflection of each other, and we just need to make sure that we balance our energies out. And it seems like good times are on the horizon as far as health is concerned. If you can just maintain a healthy balance of your health by the right diet. Now, मेष राशि वालों के लिए है ये आपका सूर्य लग्न, सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि। तो जहां तक पैसों की और काम की बात है, आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि
काम इतना कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं आ रहे, या लोन है और पैसे चुकाने हैं, या कमाई इतनी नहीं हो रही इतने दिनों से, लॉकडाउन की वजह से वगैरह वगैरह। काफ़ी सारे लोगों की जिंदगी सूली पर चढ़ी हुई है। इस लॉकडाउन ने काम का ना सत्यानाश करके रखा हुआ है। लोगों के पास आमदनी की दिक्कतें आ रही हैं, अपने बचाव किए हुए, बचत किए हुए पैसों में से खर्चा कर रहे हैं, और बिजनेस खराब हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। सत्यानाश करके रखा हुआ है लॉकडाउन का। और इस लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप एक तरफ कह रहे हो कि टीका लगाओ, टीका लगाने के बाद भी आप मास्क लगाओ। अगर टीका भी लगाना है और मास्क भी लगाना है तो टीका लगाने की जरूरत क्या है? और टीका अगर काम करता है तो मास्क लगाने की जरूरत क्या है? मेरी तो समझ में नहीं आता। और अगर दोनों लगा लिए तो फिर लॉकडाउन की जरूरत क्या है? नहीं समझ में आया। दोबारा सुनो, समझ में आएगा। कोई लॉजिक नहीं है। तो उसकी वजह से आमदनी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, हर एक के साथ आ रही हैं। और हाँ, जिनकी कोई इंटरनेशनल फर्म्स के साथ या कुछ इस तरह की नौकरियां हैं, जैसे पुलिस की हो गई, डॉक्टर्स की हो गई, उन लोगों का काम है। लेकिन आमतौर पे बाकी लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। तो चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि आमदनी होगी और आएगी, ईश्वर आपका साथ देगा, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। रही रिश्तों की बात, तो आप अब तक अपने आप में रहे, लोगों से ज्यादा मिलना नहीं, बात नहीं करना, अकेलापन महसूस करना, और आपको ऐसा लगा कि कोई है नहीं जिससे आप अपना अ, दिल की बात कर सकें। वेल, आप किसी से मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, जो जिसे कहते हैं दो जिस्म एक जान, वो इंसान आपकी जिंदगी में आने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि आप मैरिड हैं और वो आने वाला है, कि आप सिंगल हैं और वो आने वाला है। तो अगर आप मैरिड हैं तो भैया ऐसी चीज, तो फिर तो आपको ये अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी हो रहा है तो मेरे हिसाब से अपनी अर्धांगिनी या अपने अर्ध नारीश्वर के अंदर अपने इस दो बदन एक जान को ढूंढिए, और अपनी प्यार की चिंगारी को अपने रिश्ते में जलाइए। इसके अलावा कोई चारा नहीं आपके पास, यही करना सही रहेगा। रही हेल्थ की बात, तो इतना ज्यादा प्यार उमड़ रहा है मन में, अपनी पुरानी यादें, हो सकता है कि कोई पुराना प्यार आपकी जिंदगी में लौट भी आए, लेकिन कोई पुरानी यादें और जिस तरह की आपकी जिंदगी आप चाहते थे, आपके वो सपने, उस सोच में आप इतने अपने जज्बातों में बह जाएं कि आपको तकलीफ होने लगे, रोने लगे, दुख होने लगे। तो अपने इमोशंस को एक तो थोड़ी ग्राउंडिंग करो। ग्राउंडिंग मेडिटेशंस बहुत सारी डाली हुई हैं मैंने मेरे चैनल के ऊपर, तो आप वो ढूंढ सकते हो और वो कर सकते हो। ग्राउंडिंग की जरूरत है। इमोशंस आपके बहुत ज्यादा बह रहे हैं, आपके मन में इतना प्यार भरा हुआ है जो आप बांटना चाहते हैं, देना चाहते हैं, पर कोई सोर्स नहीं मिल रहा। वो सोर्स आ रहा है। सब्र करो। और अपने जल तत्व और अग्नि तत्व को थोड़ा सा बैलेंस करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उछल रहा है। पैशन बहुत ज्यादा इग्नाइट हो रहा है, मतलब कि वो चिंगारी बहुत जल रही है। तो होगा होगा, उसका सब्र करो, वो वक्त भी आएगा। बस अपने खाने पीने में वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन लीफी वेजिटेबल्स वो ज़्यादा खाओ, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक है। सो दैट वाज एरीज। इफ़ यू नीड एन अपॉइंटमेंट, आप मिलना मतलब अपॉइंटमेंट चाहें तो इस वीडियो के नीचे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। और तब तक ये वीडियो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना।
और शब्बा खैर. Good night. Goodbye.